اسرائیل کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے خبروں کے مطابق کہ انہوں نے دوبارہ سے غزہ پہ کنٹرول کر لیا ہے. 15 سے 2000 کے قریب جو ڈیڈ باڈیز ملی ہیں وہاں پہ حماس کے لوگوں کی. آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ آپ ٹیکنیکوں کو مانتے ہیں. میرا اپنا دماغ ہے, میں ٹیکنیکوں کو نہیں مانتا. جب تک مسلمانوں کے اندر جتنی مرضی ٹیکنیک ہو جائے, اب تھوڑی ٹیکنیک ہے پاکستان کے پاس. اچھا, ہمارا پورا ملک خاموش ہے. کہاں گئی ٹیکنیک؟ جب تک ایمان کا جذبہ نہیں آئے گا بھائی آپ جنگ نہیں جیت سکتے. اسی چیز کو دکھانے کے لیے تو ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. رات کا یہ وقت ہے اور یہ نوجوان بغیر کسی سیاسی, مذہبی یا کسی بھی تنظیم کے علاوہ یہ اپنے ان بھائیوں, مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو اگر یہ گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو یہ سینکڑوں نہیں لاکھوں نوجوان یہاں پہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور اپنے بھائیوں کے لیے جان قربان کے لے کے. اسلام کا جو ہے نا اس کو کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں. اللہ یہ ٹیکنالوجی کس نے ڈالی ہے لوگوں کے ذہن میں؟ اللہ نے ڈالی ہے. اچھا, اللہ نے دوسرے لوگوں کے ذہن میں سر ٹیکنالوجی ڈال دی ہے نان مسلم کے مائنڈ میں. ہمارے اگر مسلمانوں کی بات کریں ہم اس طریقے سے, اللہ نے ہمارے ذہن میں کیوں نہیں ٹیکنالوجی ڈالی؟ الحمدللہ جو یہ سمجھتے تھے کہ فلسطین کے مجاہدین دب گئے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے, پوری دنیا کو بتا دیا ہے اور مسئلہ فلسطین کو ایک دفعہ پھر پوری دنیا میں اجاگر کر دیا ہے کہ یہ جو ہے فلسطین کی آزادی کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. اور دوسرا آپ نے اکانومی کی بات کی تو اس میں آج کل یہی سمجھا جا رہا ہے کہ جنگیں اکانومی کے ساتھ لڑی جاتی ہیں, لیکن یہ فیکٹ والی بات بھی ہے نا. دیکھیں ایک سائڈ پہ نعرہ لگایا جائے, ایک سائڈ پہ جو ان سے خالی جذبے کی بات کی جائے, دوسرے سائڈ پہ پراپر ٹیکنالوجی ہو, پراپر میزائل ہو, تو پھر تھوڑا سا یہ چیز فیکٹ پہ تو آتی ہے. جی بالکل ہوتی ہے, لیکن آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں بلکہ جذبے جو ہیں وہ کام آتے ہیں. وہ ان فلسطینی بچوں کے ہاتھ میں جو پتھر ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ میں طاقتوں سے. اچھا, ابھی اسرائیل کی اگر بات کریں, فلسطین کی بات کریں, حماس کی بات کریں, جنگ چل رہی ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل نے پھر سے کنٹرول کر لیا ہے غزہ کے اوپر. کیا کہنا چاہیں گے یہ جو جنگ ہے کیا کون سا رخ اپنا رہی ہے؟ 1500 2000 کے قریب جو سی ہیں وہاں پہ حماس والوں کی ڈیڈ باڈیز بھی ملی ہیں ادھر غزہ میں. کیا کہیں گے آپ؟ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے وقل جال حق وزاحق الباطل ان الباطل کان مشہودا. حق اللہ کی مہربانی سے فتح یاب ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسرائیل کا بیڑا غرق کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حماس کو اپنے غیب کے خزانوں سے ضرور فتح یاب کرے گا. ٹھیک ہے, ادھر دو چیزیں ہیں. آپ نے بولا کہ بھائی حماس کو فتح یاب کرے گا, اسرائیل کا بیڑا غرق کرے گا. صرف دعا کر دینے سے یا اس طریقے سے کرنے سے تو جنگیں نہیں لڑی جاتی. جنگیں لڑی جاتی ہیں ٹیکنالوجی سے. آج کے دور پہ خاص طور پہ اگر بات کریں اکانومی سے جنگیں لڑی جاتی ہیں. کیا کہیں گے اس ٹائم پہ 30 بلین کے فاریکس ریزرو جو اسرائیل نے سیل کیے ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھائی ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں. اور یہ کیا فلسطین کی بات کریں یا حماس کی بات کریں اتنی اکانومی ان کے پاس ہے کہ وہ اس طرح سے اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں یا پھر جیسے سپر پاور امریکہ ساتھ دے رہی ہے مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیں غزوہ بدر کی آپ ہسٹری لے لیں, 313 صحابہ کرام تھے. آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ آپ ٹیکنیکوں کو مانتے ہیں. میرا اپنا دماغ ہے, میں ٹیکنیکوں کو نہیں مانتا. جب تک مسلمانوں کے اندر جتنی مرضی ٹیکنیک ہو جائے, اب تھوڑی ٹیکنیک ہے پاکستان کے پاس. ہمارا پورا ملک خاموش ہے. کہاں گئی ٹیکنیک؟ جب تک ایمان کا جذبہ نہیں آئے گا بھائی آپ جنگ نہیں جیت سکتے. وہ 313 تھے صحابہ کرام جنہوں نے کفر کا بیڑا غرق کر دیا تھا. انشاءاللہ اس دفعہ پھر تاریخ اپنا آپ دہرائے گی اللہ کے حکم سے. یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں اللہ کی مہربانی سے اب اللہ ٹیکنالوجی بھی دے دے گا. جب جذبہ سچا ہو, لگن ہو, تو اللہ کی ذات اپنی غیب سے مدد فرماتی ہے. ایک چیز یہ بھی کی کہ اگر مسلمان یونائٹڈ ہو جائیں, اکٹھے ہو جائیں, تو اس کا مطلب ابھی دنیا کے مسلمان اکٹھے نہیں نظر ابھی تو اکٹھے نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہو جائیں گے. مجھے اللہ سے بڑی امید ہے. ہوں گے کون سا ایسا مطلب اس ٹائم پہ اگر اکٹھے نہیں ہیں اور ایون اکٹھا ہونا ایک دوسری طرف ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں اس ٹائم. اگر ہم بات کریں پاکستان کی, افغانستان کے ساتھ ایشو چل رہے ہیں اور ایران کے مطلب دوسرے شیعہ سنی کنفلکٹ یار میری بات سنیں. افغانستان کے اندر کتنے افغانی تھے, انہوں نے کیسے امریکہ کو شکست دی ہے میرے بھائی؟ کیا ان کے پاس امریکہ سے زیادہ ٹیکنالوجی تھی؟
बताओ मुझे रूस का कैसे उन्होंने बेड़ा गर्क किया, क्या उनके पास रशिया से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? अल्लाह की तो रूस के अगेंस्ट अमेरिका ने दिया था। मेरे भाई अब भी कोई ना कोई दे रहा है असला, अंदर खाते और दे देगा अल्लाह की मेहरबानी से। ये मेरा इंटरव्यू तुम याद रखना, फतह अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमानों के हक में आएगी और फलस्तीन के अंदर इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद होगा। ठीक है, यहाँ पे भी लोग रैलियां निकाल रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग आप रोड पे आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, और जुम्मे की भी कॉल दी गई है कि भाई पूरे पाकिस्तान के हर एक शहर में रैली निकाली जाएगी। मुझे बताएं, पब्लिक अपने तौर पे आप अपने जज्बात रखते हैं, मैं आपसे इख्तलाफ भी कर सकता हूँ, आपसे जो से आपकी ओपिनियन से एग्री भी कर सकता हूँ, लेकिन स्टेटमेंट तो मानी जाती है गवर्नमेंट की, जो बात है जो पॉलिसी है वो तो गवर्नमेंट की मानी जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको क्या नजर आ रही है सिचुएशन में? एक साइड पे ये भी खबर आ रही है, मीडिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गजा पे दोबारा कंट्रोल हो चुका है इसराइल का, और इसराइल वाले ये कह रहे हैं कि भाई अब ये जिस तरीके से हमास ने स्टार्ट किया है, बड़ी मुश्किल में फंसेंगे, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्या समझते हैं आप, हमारी गवर्नमेंट का क्या लाहे अमल है, क्या पॉलिसी है इसको लेके? हमारी गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि गरीब आवाम को लूटना कैसे है, ठीक है, और इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। इनको अपने अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है कि हमने पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं, खाना कैसे, आवाम का बेड़ा गर्क कैसे करना है, और इंशाअल्लाह और रहमान अल्लाह की मेहरबानी से हक वाज़िया होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान ना सही, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुर्की में भी मुसलमान है, पूरी दुनिया में मुसलमान है। पता क्या स्टेटमेंट दिया आपने, तुर्की की बात की है, तुर्की वालों ने ये नहीं कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं या इसराइल के साथ खड़े हैं, उन्होंने बोला कि दोनों कंट्रीज या दोनों पार्टीज आपस में बैठ के जो उनसे मामला को हल कर ले ये बेहतर है, यानी वो समझ ले बीच में पड़े ही नहीं। इन शॉर्ट अगर ये मामला बैठ के ख़त्म नहीं होगा। मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, आप अफगानिस्तान की तारीख देख लें, ठीक है, अफगानिस्तान ने भी जंग जैसे जीती है ना, इंशाअल्लाह हमास फतह याब होगा। हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें, और इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह की गैब से मदद आती है ना मेरे भाई, अल्लाह चिड़ियों के हाथों बाज मरवा देता है। ठीक हो गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद आजम साहब जी। एक इनसे सवाल कर लूँ, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, करते क्या आप? मेरा कपड़े का ही काम है। ठीक है, ये भाई अभी कह रहे थे कि भाई आज के दौर में, मतलब इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज के दौर में भी जंग जो सी है वो जज्बे से लड़ी जाती है और इस तरीके से लड़ी जाती है। मैंने बात की कि भाई आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इकॉनमी का दौर है, जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इकॉनमी नहीं होगी, तो कैसे कोई भी किसी का मुकाबला कर पाएगा? आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? आप यही कहेंगे जो भाई ने बोला कि जज्बे से और इस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई की बात तो बिल्कुल वही है कि जंग जज्बों से जीती जाती है। अच्छा। गज़वाए बदर है, 313 सहाबा हैं और कुफार का लश्कर है। लेकिन सर तब देखें टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, मेरा ये भी पॉइंट है, तब इकॉनमी नहीं थी। सर टेक्नोलॉजी का जवाब मैं आपको अभी देता हूँ कि अफगानिस्तान में कौन सी टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, उनको तो ये भी नहीं पता था कि रॉकेट लॉन्चर के अंदर रॉकेट कैसे डाल के चलाना है। लेकिन रशिया के अगेंस्ट उन्हें सप्लाई मिलती रही अमेरिका की तरफ से। सर जी वो अगर रशिया के, लेकिन जो नए लोग लड़े हैं, जो नई कौम लड़ी है, वहाँ पे कौन से ट्रेनिंग याफ्ता थे। ठीक है, ठीक है। और इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। हमारे अगर मुसलमानों की बात करें, हम उस तरीके से अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी? अल्लाह ने बड़ी डाली है, तुम ये कभी भी ना सोचो अभी भी बगैर टेक्नोलॉजी के जंग नहीं हो रही। अंदर खाते मुसलमान की मदद कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहे। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह खुल के सामने आए, मतलब मुसलमानों को टेक्नोलॉजी के जरिए भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जरूर मदद देगा और दे भी रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान के? जिस भी पाकिस्तानी से पूछें, जिस भी शहरी से पूछें, इनसे पूछा, इन्होंने भी जज्बात का इजहार किया, आपसे पूछा, मुझे पता है इधर जितने भी लोग खड़े हैं सभी ये कहेंगे कि हम फलस्तीन के साथ हैं, ये चीज़ है। लेकिन हमारा इस टाइम जो इकॉनमी की सिचुएशन है या ओवरऑल जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, हमारा साथ खड़ा होना ना होना मायने रखता है। जिस तरीके से दूसरी साइड पे अगर बात करें, इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, इंडिया ने भी ये अनाउंस किया कि भाई हम जो उनसे मॉरली उनके साथ खड़े हैं, हम जो उनसे उनको सपोर्ट करते हैं। साथ उनके जो खबर के मुताबिक इंडियन हैकर हैं वो फलस्तीन की जो वेबसाइट है वो भी हैक वगैरह करने की ट्राई ये कर रहे हैं। बड़े बड़े कंट्री इस तरीके से जो साथ खड़े हैं, हमारा खड़े होने का क्या आप समझते हैं? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे जो हुक्मरान हैं, आप इनसे ये ना समझें कि ये खड़े नहीं हैं। ठीक है, ये जैसे भी हैं, इनके अंदर ईमान है।
ये कलमा गो हैं, हमारी फौज कलमा गो है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी कलमा गो हैं, आपके अंदर भी वो दुआएं मौजूद हैं कि किस तरह जो है ना हमने जो है ना दुआएं करनी है। जिंदाबाद, नो डाउट। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? अपनी बात करिएगा कि आज भी जो है ना लोग भी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के साथ हैं और क़यामत तक रहेंगे। सिर्फ क्या है कि हमारे अंदर वो जज्बा ख़त्म हो चुका है, जो जज्बे को उजागर करना है वो क्या है? अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। ठीक है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जज्बे हमारे में कम हो चुके हैं आज के। सारा हमारे में कम है, लेकिन जो मैदानों में उतरे हुए हैं उनके जज्बे तो हैं। अगर उनके जज्बे ना होते तो कश्मीर के हालात दिन ब दिन और बदतर होते जाते। ठीक हो गया। अफगानिस्तान की जंग जो है ना कौन सी टेक्नोलॉजी से जीती गई है? क्या आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, लेकिन अल्लाह की मदद थी। वो अल्लाह को मानने वाले थे, तहज्जुद में अल्लाह को मनाते थे। अच्छा, आज अगर पाकिस्तान के नौजवान से, यहाँ पे नौजवान खड़े हैं, ये सब नौजवान हैं, आज अगर इनसे कहा जाए कि भाई फ़लस्तीन चलो, वहाँ पे जाके जो सा उनके साथ मिल के आप जो सा जंग करो, तो क्या यहाँ से नौजवान जाएंगे? जज्बे के तहत जाएंगे या फिर क्या आप क्या कहें? गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए, अपने तौर पे नहीं। सर जी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए तो सबसे पहले आप जाने के लिए तैयार हो। ठीक हो गया। क्या आप जाने के? आप अपना मुझे बताएं, आप क्या नहीं जाना चाहेंगे? मैं कहता हूँ, मैं तो आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। मैं कहता आप क्या इसके अगर गवर्नमेंट कहती है कि मुसलमानों का साथ दो, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी होती है। कौन सा मुसलमान ऐसा है? वो माली लिहाज से भी जाएगा, वो जानी लिहाज से भी जाएगा और वो जज्बे से जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे। क्या कहते हैं, जंगें तो लड़ी जाती हैं इकोनॉमी के साथ। इकोनॉमी मजबूत होगी, पैसे जेब में होंगे तो जंग लड़ी जाएगी। खाली नारा लगा देने से, खाली ये लब्बैक जिहाद कहने से क्या ये जंग इस तरीके से लड़ी जाती है? दूसरे नंबर पे वहाँ पे इस टाइम जो कंडीशन है हमास के, अगर बात करें, इसराइल की बात करें, क्या कहेंगे आप कि इकोनॉमी हमारी आपके सामने, क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं? पहले जो आपने अपने गवर्नमेंट की बात की, हमारी गवर्नमेंट इस वक्त जिस हाल में भी हो, हमने ये रैली का मेन जो पर्पज़ है वो ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए वो भी खड़े हों हमारे साथ। आप देख सकते हैं नौजवान हैं, इनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अपनी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी उनके साथ खड़े हों। और दूसरा, आपने इकॉनमी की बात की, तो उसमें आजकल यही समझा जा रहा है कि जंगें इकॉनमी के साथ लड़ी जाती हैं, लेकिन ये फैक्ट वाली बात भी है ना। देखें, एक साइड पे नारा लगाया जाए, एक साइड पे जो उनसे खाली जज्बे की बात की जाए, दूसरे साइड पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, प्रॉपर मिसाइल हो, तो फिर थोड़ा सा ये चीज़ फैक्ट पे तो आती है। जी बिल्कुल होती है, लेकिन आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि लड़ने के लिए असलिया नहीं बल्कि जज्बे जो हैं वो काम आते हैं। वो उन फ़लस्तीनी बच्चों के हाथ में जो पत्थर है, वो अपने उन भाइयों, मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो ये सैकड़ों नहीं लाखों नौजवान यहाँ पे सड़कों पे आ जाएंगे और अपने भाइयों के लिए जान कुर्बान के लिए गए। ठीक है। अच्छा, अभी खबर क्या आप देख रहे हैं कि एक साइड पे इसराइल है, अमेरिका है, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं, और दूसरी साइड पे जैसे हमास जैसा ग्रुप है या फ़लस्तीन के लोग हैं, क्या कहेंगे, या ईरान है? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसकी वजह ये है कि हमारे मुसलमान जो एक उम्मत जो थी, वो उम्मत कि हमारे भाई वहाँ पे कट रहे हैं, तो हम अपने भाइयों के साथ हैं। गवर्नमेंट अगर इजाज़त देगी तो हम वहाँ पर जाने के लिए भी तैयार हैं, उनके साथ खड़े हों। सबसे पहले तो यह है कि हम अप्रिशिएट करते हैं हमास के मुजाहिदीन को, ठीक है, जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया है। वो मुल्क जो पूरी दुनिया में अपने आप को सेफ मानता था, अल्लाह के फ़ज़ल से हमास के मुजाहिदीन ने उसका गुरूर जो है वो तोड़ दिया है। गुरूर तब मेरे ख्याल से टूटता कि जब जंग में कामयाबी होती है। स्टार्ट किया, उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं वो तो बड़ी परेशानी वाली खबरें, और पूरी दुनिया ये कह रही है कि बेवकूफ़ाना हरकत की है। मतलब जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, अगर हम अमेरिका की बात करें, इवन अमेरिका तो उनके साथ बिल्कुल स्टैंड भी कर रहा है। इंडिया की बात करें, इंडिया भी स्टैंड कर रहा है, और दूसरे कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और इवन इस्लामिक कंट्री की भी बात करें, तुर्की ने कोई सच जो सा वो मुस्लिम के हवाले से स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा दोनों तरफ जो है हम चाहते हैं सुलह हो जाए और ये चीज़ें हों। नहीं, जो वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी गलत पॉलिसी है कि उन्होंने जो हमला किया, हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ा उनका हौसला है। अच्छा, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा मार का मारा है। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह जो ये समझते थे कि फ़लस्तीन के मुजाहिदीन दब गए हैं, वो कुछ नहीं करते, पूरी दुनिया को बता दिया है और मसला फ़लस्तीन को एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया में उजागर कर दिया है कि ये जो है फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता। ये जुम्मे के रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में निकाली जा रही हैं और बहुत बड़े जो इज्तिमा हैं वो इस जुम्मे के रोज़ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमास के साथ फ़लस्तीन की आवाम के साथ भरपूर यकजहती का मुजाहरा करेंगे।